انیس سر جڑ رہے ہیں. السلام علیکم سر. اسد بھائی السلام علیکم. جی اگر اجازت ہو تو شروع کروں صدر سر. جی شروع کیا جائے. جی بالکل. بد سر بھی آ گئے. تو سب لوگوں کی اجازت سے اور ہمارے پرنسپل سر کی اجازت سے آج کے اس پروگرام کو شروع کرتے ہوئے میں بس اتنی سی تمہید رکھنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس سال اردو صحافت کے 200 سال پورے کر رہے ہیں، اور اس موقع سے مختلف تنظیموں نے اور مختلف اداروں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو منانے کا، اس جشن کے اہتمام کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. پٹنے میں، کلکتے میں، دہلی میں اور کئی اور جگہوں پہ ملک کے ایسی بہت ساری پروگرامس اور ایسے بہت سارے ایونٹس منعقد کیے گئے ہیں جس میں اردو صحافت کے ان 200 سالوں کے بارے میں باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور اس پہ گفت و شنید بھی ہو رہی ہے، اور اس پہ رائے مشورے بھی ہو رہے ہیں. تو اس کو سوچتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی یہ محفل آن لائن رکھنے کی سوچی، جس میں کریم سٹی کالج کے شعبہ اردو اور شعبہ انگریزی نے مل کر کے اس کو آن لائن آرگنائز کرنے کی کوشش کی. اور ارادہ یہ تھا اور ارادہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو کسی نہ کسی طور پہ اردو سے یوں جڑے ہوئے ہیں کہ یا تو وہ اردو کے طالب علم ہیں، یا اردو ان کی مادری زبان ہے، یا انگریزی کے طالب علم ہیں اور ہندوستانی زبانیں اردو، بنگلہ یا ہندی ان کی مادری زبانیں ہیں. تو ایسے بچوں کو ایک جگہ جوڑا جائے اور جوڑ کر کے کچھ بنیادی باتیں اردو صحافت کے نقطۂ نظر سے کی جائیں. تو سب سے پہلے تو میں اپنے پرنسپل سر سے گزارش کروں گا، ڈاکٹر محمد ریاض سر سے، کہ سر آپ اپنے مہمانوں کا استقبال کریں. ڈاکٹر محمد ریاض سر. شکریہ یحییٰ صاحب. محترم پروفیسر صفدر امام قادری صاحب، شعبہ اردو، این کالج پٹنہ، ڈاکٹر افسر کاظمی صاحب، صدر شعبہ اردو، کریم سٹی کالج، ڈاکٹر سید محمد یحییٰ ابراہیم صاحب، صدر شعبہ انگریزی، کریم سٹی کالج، سامعین، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں کالج انتظامیہ کی جانب سے دل کی گہرائی سے آج کے ہمارے ریسورس پرسن جناب پروفیسر صفدر امام قادری صاحب کا استقبال کرتا ہوں. سر، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. آپ کی پہچان اردو صحافت اور تنقید نگار دونوں طور پر پورے ہندوستان میں ہوتی ہے. ان کی اردو صحافت پر کئی ایک کتاب منظر عام پر آ چکی ہے. آپ علمی حلقے میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے. آج آپ کے لیکچر سے ہم سبھی محظوظ ہوں گے. کریم سٹی کالج کے شعبہ اردو اور شعبہ انگریزی نے اردو صحافت کے 200 سال پورا ہونے کے موقع سے روزہ آن لائن سمپوزیم کا انعقاد کیا ہے. اس کے لیے میں دونوں ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں. خواتین و حضرات، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اردو اخبار پہلا جو شائع ہوا تھا جامع جہاں، وہ 1822 میں. یہ ہفتہ واری اخبار تھا، اور یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوستان کے اندر آزادی کی چنگاری سلگ رہی تھی. اس آزادی کی چنگاری کی زبان اردو اخبار تھے اور اردو صحافی تھے. کئی ایک اردو صحافی کو پھانسی کی سزا بھی دی گئی. اردو صحافت کو فروغ دینے میں مولانا آزاد،
हजरत मोहानी, मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल माजिद दरियावी से लेकर अलहाज गुलाम सरवर साहब तक का नुमाया किरदार रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे रिसोर्स पर्सन से इस अहम मौजू पर हमें बहुत कुछ सुनने का मौका मिलेगा। मैं शुक्रगुजार हूं शोबा उर्दू के डॉक्टर अफ्तर काजमी और शोबा अंग्रेजी के सैयद मोहम्मद यहिया इब्राहिम साहब का, जिन्होंने आज हमें इस अहम मौजू पर प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब से सुनने का मौका फराहम किया है। मैं इस्तेकबाल करता हूं अपने सभी सामाईन का, खास तौर पर अनीसुर रहमान साहब का, जो हमेशा हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। मैं तमाम असातिज़ा कराम और अपने तलबा और तालिबात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपको इस अहम मौजू पर उर्दू सहाफत के बारे में सुनने का मौका मिलेगा, जो आने वाली नई नस्ल के लिए एक नई राह बनाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम उर्दू सहाफत में एक इजाफा की हैसियत रखेगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम आपके ममनून व मशकूर हैं कि आपने हमारे मेहमानों का इस्तकबाल इस तरह से किया। हम लोग अनीसुर रहमान सर का, असद फैसल साहब का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज की महफिल के लिए आपने वक्त निकाला। प्यारे बच्चों, जैसा कि रियाज सर हमें बता रहे थे कि आमतौर पे ये माना जाता है कि उर्दू सहाफत की शुरुआत कलकत्ते के एक अखबार से हुई। उस अखबार का नाम जामे जहानुमा था और जो 1822 में पब्लिश हुआ। बहरहाल ये एक रिसर्च का मौजू है और इस पर रिसर्च हो भी रही है गालिबन कि क्या वाकई ऐसा था या उससे पहले भी कोई और चीज़ है जिसको हम, या कोई और तहरीक है, कोई और अखबार है जिसे हम इस रूप में या इस तरीके से देख सकें। बहरहाल जो वाइडली एक्सेप्टेड नॉर्म है, ये जो वाइडली एक्सेप्टेड जो लोगों का यकीन है, वो यही है कि 1822 में जामे जहानुमा पंडित हरि दत्त, और बल्कि पंडित हरिहर दत्त ने इस अखबार को शाया किया। और बच्चों, तुम लोगों की जानकारी के लिए ये अर्ज कर दें कि उसके बाद मौलवी मोहम्मद बाकर साहब ने दिल्ली उर्दू अखबार 1831 में शाया किया, 1831 में। और अगर इस बात पे, इस नुक्ते पे ध्यान दें हम लोग कि उर्दू सहाफत और उर्दू के इन दोनों अखबारों से कबल सिर्फ बंगला ही वाहिद हिंदुस्तानी वर्नाकुलर थी जिसमें अखबार निकल रहा था। हिंदी की जो सहाफत है उसकी शुरुआत 1826 से होती है। तमिल सहाफत की शुरुआत 1831 से होती है। बांग्ला सहाफत यकीनन उर्दू सहाफत से पहले 1816 से उसके, और बंगाली गज़ट और बंगाल गज़ट के नाम से उसके कुछ चीज़ें जो हैं वो हासिल हैं। बच्चों, रियाज सर ने ये भी कहा हम लोगों से कि एक ऐसे ज़माने में उर्दू सहाफत ने जन्म लिया जो अंग्रेज़ों का दौर था, और उर्दू सहाफत ने एक बहुत बड़ा किरदार, एक बहुत नुमायाँ किरदार 1857 की पहली जंग आज़ादी में उर्दू सहाफत का रहा, और उर्दू सहाफ़ियों ने एक बहुत नुमायाँ किरदार उसमें अदा किया। फिर उसके बाद सर सैयद का दौर आया, और सर सैयद ने एक अलग तरीके से, बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में, कि उर्दू सहाफत का इस्तेमाल इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए, उर्दू सहाफत का इस्तेमाल एकेडमिक डिस्कोर्सेस के लिए, उर्दू सहाफत का इस्तेमाल सर सैयद की जो साइंटिफिक सोसाइटी थी और आवाम में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को फैलाने का जो मकसद था, तो उस लिहाज से किया गया। फिर ज़माना आया 1900 और उसके बाद का, जब उर्दू ने हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी में एक बेतहाशा नुमाया रोल अंजाम दिया। और आज़ादी के बाद से अब तक, तुम लोग भी इतिहास के स्टूडेंट रहे हो, तुमने भी तारीख पढ़ी है और तुम जानते हो कि किस तरीके से वो उर्दू ने अब तक का सफ़र किया है। A language which was once a crusader of Indian freedom movement is now facing several types of prejudices, several types of linguistic politics, and several types of bigotry also.
सो ये जो 3 रोजा ऑनलाइन सिम्पोजियम विच वी हैव प्लान, जिसको हम लोगों ने रखा है, उसको यही सोच करके रखा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज जो सफदर इमाम कादरी साहब के तकरीर का जो उन्वान है, उनके गुफ्तगू का जो उन्वान है, जिसमें सर पूरी उर्दू सहाफत की लेगेसी को का अहाता करेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट और अहम पड़ाव जो रहे हैं, टर्निंग पॉइंट्स जो रहे हैं, जो मील के पत्थर रहे हैं उर्दू सहाफत के, उस पे सर रोशनी डालेंगे। कल हम लोगों ने सर सैयद और उर्दू सहाफत पे एक लेक्चर रखा है, और फिर परसों हम लोगों ने उर्दू सहाफत और तहरीक आज़ादी, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो इन तीनों चीज़ों का अहाता करते हुए 3 रोज़ा सिम्पोजियम का हम लोगों ने इनाकाद किया है। और ये बड़ा ही मौजू वक्त है और बड़ा ही मौजू है कि आज हम लोग इस सिम्पोजियम की शुरुआत सफदर इमाम कादरी सर के लेक्चर से कर रहे हैं, जिसमें जैसा मैंने कहा कि सर लेगेसी ऑफ उर्दू जर्नलिज्म एंड ऑल दोस इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द लास्ट 200 years, उस पर सर बात करेंगे। और इनसे अच्छा कोई गुफ्तगू करने वाला, इनसे अच्छा कोई लेक्चर देने वाला इस मौजू पे हम लोगों को बहम नहीं था। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सर सामने बैठे हैं, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पटने से लेकर के दिल्ली तक और इस पूरे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और दिल्ली और वो तमाम इलाके जहाँ जहाँ भी उर्दू अदब, उर्दू ज़बान, उर्दू कल्चर, उर्दू सहाफ़त को जाना जाता है, जहाँ जहाँ भी उर्दू अदब और उर्दू ज़बान पढ़ी और सुनी और बोली जाती है, वहाँ वहाँ सफदर इमाम कादरी साहब का नाम मोहताज तारुफ नहीं है। सर अदीब हैं, शायर हैं, सहाफ़ी हैं, नक़ाद हैं, और उर्दू के हवाले से, चूँकि उर्दू के उस्ताद हैं, एक बहुत लंबा तजुर्बा उर्दू उर्दू पढ़ाने का भी रहा है। इस वक्त सदर हैं शोबे उर्दू के, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, जो कि पटना में वाक़ है। उसमें सर के अंदर और सर के ज़ेर निगरानी तकरीबन 15 PhD डिग्रियां अवार्ड हुई हैं आज तक, 38 किताबें, एक बहुत लंबा सा तारुफ सर का है। और मैंने सिर्फ कुछ अहम नुक्ते एक छोटे से पन्ने में जो आ जाते वो तुम बच्चों की जानकारी के लिए लिख लिए हैं कि सर की 38 किताबें और उसके अलावा 300 से जायद मज़ामीन, आर्टिकल्स, यू कैन से रिसर्च पेपर्स, यू कैन से, तो ये सारे शाया हुए हैं। तकरीबन 10 से ज़्यादा जर्नल में सर या तो एडिटर या जॉइंट एडिटर या एडवाइजरी एडिटर या फिर एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर के तौर पे जुड़े रहे हैं। इस वक्त बज़्म सदफ इंटरनेशनल, जो कि एक बहुत बड़ी तंजीम है उर्दू की और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और गल्फ के इलाकों में बहुत ही फ़ाल है, बहुत ही एक्टिवली काम अंजाम दे रही है। रिसाला सदफ इंटरनेशनल उर्दू जर्नल है, उसके सर एडिटर इन चीफ हैं, और मुख्तलिफ किस्म के इनामात और एजाज़ात से सर को नवाजा जाता रहा है। उसमें से कुछ बस तुम लोगों की जानकारी के लिए, जैसे सर को बिहार उर्दू एकेडमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, शाद अजीमाबादी लिटरेचर अवार्ड और काजी अब्दुल वदूद लिटरेचर अवार्ड दिया गया सर को। सर पटना यूनिवर्सिटी का जो सीनेट है उसके, और BR अम्बेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का जो सीनेट है उसके मेंबर रहे हैं। डायरेक्टर अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के डायरेक्टर के तौर पे इन्होंने अपनी खिदमात दी हैं। और सर टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी जो NCERT की है उससे भी जुड़े रहे हैं। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था, लेकिन सर जब सर का लेक्चर होगा तो ये सारा तारुफ भी उसके आगे कुछ नहीं होगा। और हम बसद खुलूस व एहतराम सर से गुजारिश करते हैं कि सर अब ये महफिल आपकी हुई, आप आएँ और हमारे मेहमानों से भी और हमारे बच्चों से भी बात करें। जनाब सफदर इमाम कादरी साहब। शुक्रिया यहिया इब्राहिम साहब, करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, हमारे बड़े भाई अफसर काजमी साहब, शायद अहमद बद्र भी जुड़े हों, वो हमारे दोस्त हैं। करीम सिटी कॉलेज का जैसे ही नाम आता है तो हमारे जहन में उसके बड़े फाल प्रिंसिपल और मंजर काजमी याद आते हैं। अल्लाह का फजल है, उनसे भी हमारा राब्ता रहा। ज़की अनवर और उनकी साहबजादी की याद आती है। उस कॉलेज के कितने ऐसे फारिगीन हैं
जो हमारे दोस्तों में है और बड़े मुल्क के नामवर लोगों में हैं। कई ऐसे शागिर्द हैं जिन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की, करीम सिटी कॉलेज से। 2012 में फैज़ पर जब वहाँ सेमिनार हुआ, मुझे करीम सिटी कॉलेज जाने का मौका मिला और उस कॉलेज के तमाम को और कॉलेज कितना बड़ा है ये सब देखने का मौका मिला है। ये अच्छा मौका है कि उर्दू और अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट मिलकर उर्दू सहाफ़त की तारीख़ के सिलसिले से जो ये 200 बरस पूरे हुए हैं, इस पर आप तकरीब मुनक़िद कर रहे हैं। मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान के बड़े असातिज़ा में से एक, बड़े मुसन्निफ़, मुतरजिम, नक्काद प्रोफ़ेसर अनीसुर रहमान भी इस महफ़िल में मौजूद हैं। उन्हें देखते हुए मुझे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का वो शेर याद आता है कि सौदा तू इस गज़ल को गज़ल दर गज़ल ही लिख, सौदा तू इस गज़ल को गज़ल दर गज़ल ही लिख, होना है तुझको मीर से उस्ताद की तरफ। जिस और महफ़िल में जिस ऑडियंस ग्रुप में प्रोफ़ेसर अनीसुर रहमान बैठे हुए हों, मुझे भी एक-एक लफ्ज़ चुनकर समझकर पेश करना है, ताकि सुरखरुई भी हासिल हो और हमारे तलबा और तालिबात भी जो इससे जुड़े हुए हैं, वह भी इससे फैज़ याब। किसी भी कौम, किसी भी ज़बान की तारीख़ में 100 बरस, 200 बरस एक ख़ास मियाद है और ये सिर्फ़ वक़्त से इसका जुड़ाव है कि हम एक पीरियड पूरा करते हैं। मगर वह लोग खुशनसीब होते हैं जिनके अहद में ये काम होता है। कई बार जब लीजेंड की तारीफ़ की जाती है तो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जो एक सदी में पैदा हुए हैं और दूसरी सदी में जिनकी वफ़ात हो, दोनों सदी को कवर करें। उसी तरह से कभी-कभी ये भी होता है कि हम होते हैं तो हमारे सामने अब अगर हम लोग जो जिन ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़ते हैं, तो जब याद आता है कि भाई 15 अगस्त 1947 को वो कौन से लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हिंदुस्तान की आज़ादी को देखा था। ऐसे लोग जो दिल्ली में जब परचम कुशाई हो रही थी जवाहरलाल नेहरू के हाथों से, उस महफ़िल में कौन मौजूद थे। तो ये तारीख़ की एक बात होती है और ये किस्मत होती है हमारी कि उस मोड़ पर हम खड़े हों। तो हम वो खुशनसीब नस्ल हैं जिन्हें यह देखने को मिला कि उर्दू सहाफ़त के 200 बरस मुकम्मल हुए। ये तारीख़ का एक हिस्सा है और हम सब इस तारीख़ में जुड़ गए हैं। जहाँ-जहाँ ये जश्न का माहौल है, सेमिनार, सिम्पोज़ियम और बहस-व-मुबाहसे हो रहे हैं, वो सब इस तारीख़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तारीख़ हम बनाते नहीं हैं, तारीख़ का हम हिस्सा बनते जाते हैं। जिस तरह से हरिहर दत्त को ये मालूम नहीं था कि वह दुनिया का कौन-सा बड़ा काम करने जा रहे हैं, या मुंशी सदा सुखलाल को ये नहीं मालूम था कि वो जो नक्श कायम कर रहे हैं, 200 बरस बाद तक और उसके भी बहुत बाद तक वो नक्श ज़िंदा-ए-जावेद होगा और लोग उसे याद रखेंगे। उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो उन्होंने पौधा लगाया, वो 200 बरस तक बाद वो फैल चुका है। एक कलकत्ता में नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से उर्दू के अखबारात और रसायल निकल रहे हैं। रेडियो और टेलीविज़न के नशरियात से लेकर पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री, ये सब का सब जो हमारी सहाफ़त का फैज़ान है, वो अब ये आलमी ज़बान हो गई और हमारी सहाफ़त भी आलमी हो गई। तो यह एक मौका मिला कि तारीख़ ने हमको, जो 1822 में हमने सफ़र शुरू किया था, वो बहुत खामोशी से वो सफ़र मज़बूती की तरफ बढ़ा और हम यहाँ तक पहुँच सके हैं। हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि यह मौज़ू जो मेरे लिए बहुत अज़ीज़ तर है, उर्दू सहाफ़त की तारीख़ और तारीख़ के मुख्तलिफ मोड़, उसके जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, उन पर गौर करने का मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा है, सीखने की कोशिश की है। इस मौज़ू से किताबें भी पढ़ी हैं। कहीं न कहीं सहाफ़त से बराह रास्त भी एक ताल्लुक़ रहा, टीचिंग में रहने के बावजूद
मैंने कोशिश की कि उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सब ज़बानों की सहाफ़त में कुछ-कुछ काम करते रहना चाहिए। और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम टीचिंग में मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए सहाफ़त एक आले कार है। तो मैंने उसके इसकी वजह से भी सहाफ़त से एक ऐसा लाइव रिश्ता रहा है कि जिसकी वजह से उर्दू सहाफ़त की तारीख़ को समझने की बार-बार कोशिश की है। पहली बात हमें ये याद रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान की सारी ज़बानों की सहाफ़त कलकत्ता से नहीं शुरू हुई। कलकत्ता आखिर 1822 का कलकत्ता हमें याद रहना चाहिए। आज से 200 बरस पहले कलकत्ता कैसा था। हिंदुस्तान के दूसरे दूसरे शहर वैसे नहीं थे जैसा कलकत्ता था। कलकत्ता नई तरक्कियात का शहर, नई सोच का शहर, गौर व फ़िक्र करने वाला शहर और दुनिया भर के मुल्कों के लोगों के आने-जाने से जो हर मौज़ू पर एक इंटरैक्शन और एक गुत्थम-गुत्था फ़िक्री सतह पे उस शहर में मचा हुआ था। कोई वजह होगी कि उसी शहर में उर्दू सहाफ़त के लिए सोचने वाले उर्दू, फ़ारसी, बंगला और अंग्रेज़ी चारों ज़बानों की सहाफ़त धीरे-धीरे थोड़े से अरसे में हाफ़ सेंचुरी से कम में ये सारी सहाफ़तें सारी ज़बानों की सहाफ़त शुरू हुई। तो कलकत्ता का जो बदलता हुआ ज़हन है, उसको सामने रखते हुए हमें सहाफ़त की तासीस और सहाफ़त की बुनियाद और इन 4-5 ज़बानों में जो सहाफ़त आई उसके इर्तिक़ा पर गौर करना चाहिए। उसी शहर से जब हिकीज़ गज़ट शाये हुआ, तो हमें मालूम है कि वो हिकीज़ गज़ट अ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ताउन करने के लिए नहीं निकाला गया था। इसका मतलब हुआ कि जो प्रोटेस्ट समाज में हुकूमत के खिलाफ जो तसव्वुरात उभरते हैं, जो हमारे हमारे हुकूक कहीं न कहीं सरकारों के द्वारा गस्ब किए जाते हैं, तो उसमें प्रोटेस्ट में हमारी सहाफ़त काम आ सकती है, ये तसव्वुर सबसे पहले कलकत्ता में शुरू हो चुका था। और यही वजह है कि जब जामे जहां नुमा शुरू हुआ, तो जामे जहां नुमा एक मुकम्मल और प्रोफ़ेशनल न्यूज़पेपर के तौर पर सामने आता है। जामे जहांनुमा ज़्यादा दिनों तक नहीं निकल सका। हमने जो तारीखें पढ़ी हैं उससे 5 बरस से ज़्यादा की तारीख नहीं मिलती है जो उर्दू अखबार शाये हुआ। मगर उस 5 बरस में उसने आज़ादी सहाफ़त, ख़ास तौर से सहाफ़त प्रोफ़ेशनली कैसे तैयार होगा, पब्लिकेशन का विंग और एडिटोरियल विंग कैसे अलग-अलग होता है और दोनों की जवाबदेही क्या है और किस तरह से सहाफ़त इंडिपेंडेंट तौर पर काम कर सकती है। हुकूमत से इश्तराक और हुकूमत से कहाँ इख्तलाफ करना है, इसके बारे में भी इस अखबार को के सामने एक वाज़ेह नुक्ता नज़र था। तो उर्दू सहाफ़त इस मामले में नहायत खुशनसीब है कि इस उस के ज़िम्न में जो पहली मिसाल आई या पहला अखबार उर्दू में निकला, वह आम अखबार नहीं था बल्कि वो सोचा समझा और तजुर्बाकार लोगों के ज़रिए निकाला हुआ था। इसीलिए जामे जहांनुमा ने जो बुनियाद रखी वो बहुत हमने लंबी इनिंग खेली और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। तो जामे जहांनुमा को आज हम याद कर रहे हैं, 1822 को याद कर रहे हैं, तो ये भी याद रखें कि एक ज़हनी पुख्तगी के साथ, एक फ़िक्री सलाबत के साथ वो अखबार शुरू हुआ था और इसीलिए बड़ी आसानी से वो अखबार मकबूल हुआ, हुकूमत में मकबूल हुआ, हुकूमत के बाहर अफ़सरों के बीच उसकी मकबूलियत हुई और देखते-देखते वो उर्दू का अखबार बंगाल की सरहदों से आगे निकल गया और इसीलिए हमारी तारीख़ वहाँ से बड़ी मज़बूत होती है। जहांनुमा का आखिरी दौर है, तो आप याद रखिए कि उस वक़्त गालिब कलकत्ता पहुँचते हैं। गालिब को जब हम गालिब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मोड़ पर हम नज़र करते हैं, तो ये भी याद रखना है कि गालिब उसी दौर में कलकत्ता पहुँचते हैं और कलकत्ता से जब वो पूरा सफ़र तकरीबन ढाई पौने 3 बरस का उनका है, दिल्ली से निकलना और फिर कलकत्ता पहुँच के वापस होना। ये ढाई 3 बरस में गालिब बदले हुए नज़र आते हैं। पहले जो गालिब थे, वो हमारा क्लासिकी शायर है, वो हमारा रिवायती शायर है, वो
तख्लीकी जलाल तो उसमें है, मगर वह फिक्री सलाबत, वह फिक्री एतबार से जो तेज रवी बाद में उनके यहाँ नजर आती है, वह कलकत्ता से के सफर से वापसी में गालिब को ये मिलता है। गालिब वहाँ सिर्फ गालिब के खतूत पढ़िए उस दौर के, तो वो सिर्फ नई शराबों को पसंद नहीं करते हैं, नई शराबों से मबहूत नहीं होते हैं, बल्कि उस समाज में छोटी बड़ी जो तब्दीलियां हो रही हैं, दिल्ली से कैसे वो मुख्तलिफ समाज है और कैसे वो एक बैनुल अक़वामी सतह का जहन उस शहर में मौजूद है, उसको गालिब अंगेज करते हैं और उससे तब्दीली आती है। तो ये उस शहर में, और उस शहर में जो सहाफत और उर्दू के इल्मी कामों ने जो एक नया मिजाज कायम किया था, उससे गालिब जब बदल सकते हैं तो आप समझिए कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा। इसी मौके से हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि उस सहाफत, जब हम 1822 की बात कर रहे हैं तो हमें फोर्ट विलियम कॉलेज को भी याद रखना चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज में एक तो जब अभी यहिया इब्राहिम साहब एक बात कह रहे थे कि यह कि वो पहला अखबार जामे जहानुमा है या उससे पहले भी कुछ निशानात मिले, तो एक दलील हमेशा मुंशी करीमुद्दीन की दी जाती है और मुंशी करीमुद्दीन का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था। मगर ज्यादातर मुहक्किकीन ने उसे अखबार नहीं तस्लीम किया है। मगर फोर्ट विलियम कॉलेज से हमारी ज़बान में एक वसअत फ़िक्र आई, हमारी ज़बान का वह ढांचा कायम हुआ जिसकी बुनियाद पर सहाफ़त खड़ी हो सकती थी। बोल चाल की ज़बान, नस्र का वह ढांचा जो कारोबारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, यह फोर्ट विलियम कॉलेज ने सिखाया था। और कलकत्ता में ही ये समझिए कि ज़बान का ऐसा कारखाना था फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसने हमें हमारी नस्र को आगे बढ़ने का रास्ता सिखाया। तो अगर फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं कायम हुआ होता, फोर्ट विलियम कॉलेज से किताबें नहीं निकली होती, वहाँ के मुदर्रिसीन ने लोगों की तरबियत नहीं की होती, तो यह मुमकिन नहीं था कि जामे जहानुमा जैसा अखबार निकल जाए, या जो फ़ज़ा वहाँ की थी तरक्की याफ्ता ज़हन रखने वालों के का इज्तिमा था, तो उसकी वजह से भी ये मुमकिन हो सका कि नए ज़हन के और नए तसव्वुरात के तराशे सामने आए और अखबार उसी तौर पर निकल कर सामने आया। जब आप गौर कीजिए तो ये उर्दू का बड़ा अखबार था, पहला अखबार था, और उर्दू का एक ऐसा अखबार जिसने कारोबार भी किया और जिसे घाटे में चलने वाला अखबार नहीं कह सकते हैं, मगर वो बंद हो गया। बंद होने की वजह साफ थी, वो दौर था जब अभी फारसी का बोलबाला था, और फारसी जो उर्दू नोइंग जो कम्युनिटी थी वो फारसी भी जानती थी, फारसी को हुकूमत की पुश्तपनाही थी, तो फारसी अखबार के लिए तो रीडरशिप की गुंजाइश थी, उर्दू के लिए उस वक्त वैसी रीडरशिप नहीं थी। या हरिहर दत्त ने, क्योंकि उर्दू और फारसी दोनों अखबार वो निकाल रहे थे, तो हरिहर दत्त के जो रिसोर्सेज थे उसमें उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा कि भाई किसी तरह से फारसी अखबार तो जारी रहे। मगर थोड़े ही दिनों बाद जो 1836 में दिल्ली से उर्दू अखबार, जिसे दिल्ली उर्दू अखबार पॉपुलरली कहा जाता है, नाम उसका तो उर्दू अखबार था लेकिन जो प्लेस का नाम है उसके साथ जुड़ गया, तो मौलवी मोहम्मद बाकर ने एक अखबार निकाला 1836 में। 1836 से 1857 तक, 16 सितंबर 1857 को उन्हें फांसी दी गई और उस दिन तक वो अखबार शाये हुआ। ये उस जमाने में अखबारात का मतलब था कि मैक्सिमम अखबारात वीकली होते थे, कुछ अखबारात से रोज़ा भी निकले, कभी-कभी उसमें भी बाकायदगी नहीं रहती थी। अखबार का निकालना और उस ज़माने में जो हमारी लिटरेसी रेट है वो भी नज़र में रहे कि आखिर अखबार पढ़ने वाले कितने होंगे। तो इन सबको सामने रखकर आप देखिए, अब अगर उर्दू का दूसरा बड़ा अखबार जो हमारे सामने आता है जामे जहानुमा के बाद, तो वो दिल्ली उर्दू अखबार है, जिसके एडिटर को आखिर फांसी की सजा हुई गदर में। यह बताने के लिए काफी है, ये एक सबूत है कि उर्दू अखबार में उस जमाने में क्या छपता था।
उस जमाने में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, इन ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसियों के खिलाफ समाज में एक बेदारी पैदा हो रही थी। उस बेदारी को समझने के लिए और उस बेदारी को पैदा करने के लिए कोशिशें हमारे अखबारों ने की। उन अखबारों में सबसे अहम नाम दिल्ली उर्दू अखबार का है और उसको चुकाना पड़ा, उसकी कीमत चुकानी पड़ी जब उन्होंने ख़ास तौर से बहादुर शाह ज़फ़र के साथ शरीक होना, बहादुर शाह ज़फ़र के साथ प्रोटेस्ट में मौजूद रहना, इन सब तरह के इल्ज़ामात उन पर थे और आखिर में वो प्रिंसिपल टेलर की मौत का जवाबदेह उन्हें माना गया और इस तरह से उन्हें फांसी की सज़ा हुई और वह पहले सहाफ़ी हैं हिंदुस्तानी ज़बानों में जिसको कुर्बान होना पड़ा अपने वतन पे। बखुशी वो कुर्बान हुए। हमें मौलवी मोहम्मद बाकर इस वजह से भी याद आते हैं कि उनके साहबजादे उर्दू के साहिब तर्ज अदीब हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आंखों देखी भी कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो वाकई जिन्हें खून के आंसू रुलाने के लिए काफ़ी। दिल्ली उर्दू अखबार खुशकिस्मती से उसके कई बरसों की फाइलें मौजूद है। 1841 की फाइल मौजूद है, 1840 की फाइल मौजूद है, 1857 की फाइल मौजूद है, नेशनल आर्काइव में मौजूद है और इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने 2 बार करके उसकी जिल्दें शाये की। उनमें जो खतूत छपे हुए हैं, उनमें जो खबरें हैं और उनमें और दूसरी चीज़ें हैं, उससे महसूस किया जा सकता है कि उस ज़माने के हिसाब से आज से 170 बरस पहले, 180 बरस पहले के हिसाब से अगर देखें तो लगेगा कि एक नया अखबार, एक मॉडर्न अखबार, एक नए ज़हन का अखबार वो है। उसका दायरे-कार इतना बड़ा है कि सरकारी दफ्तरों पर उसकी नज़र है, टेक्स्ट बुक पर नज़र है, उस ज़माने में शायरी कैसी हो रही है, किताबों की खरीदो-फरोख्त का क्या मामला है, इन तमाम चीज़ों पर नज़र है। समाजी बेदारी के बारे में बहुत कॉन्शियस है वो अखबार, समाज में कोई इत्तेहाम आयद कर देता है, कुछ रासिखुल अक़ीदगी है, तो इस पर भी हस्बे ज़रूरत चोट करता है। तो एक कंप्लीट अखबार उस ज़माने में दिल्ली के 2 बड़े शोरा थे। ऐसे तो मौलवी मोहम्मद बाकर पर ये इल्ज़ाम है कि वो अ, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ से अपनी दोस्ती निभाते थे और उनके तरफदार थे, मगर उस अखबार में गालिब का कलाम भी छपता रहा है और गालिब को कोई बिलिटिल करने की कोई मुहिम ऐसी चलाई हो, ये लगता है कि ये मौलवी मोहम्मद बाकर पर ये इल्ज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं है। गालिब के बारे में बड़े एहतमाम से खबरें शाये हुई हैं और गालिब का कलाम भी शाये किया जाता रहा। तो एक तरह से अब ये अखबार दस्तावेज की शक्ल में, अखबार समाज को बेदार करने की शक्ल में, फिर ये अखबार जब ज़रूरत पड़े तो कौम पर, अपने वतन पे अपनी जान को निसार करने की ज़रूरत पड़े तो इसमें भी ये अखबार आगे आया। आप असद फैसल फारूकी साहब से आप तफसील से सुनेंगे जब तीसरे दिन के जंग आज़ादी में उर्दू अखबारात का क्या रोल है, उर्दू सहाफ़त ने क्या कौन सा काम किया, इस मौजू पर आप तफसील से सुनेंगे। मगर इसका सिलसिला मौलवी मोहम्मद बाकर से ही शुरू होता है। मौलवी मोहम्मद बाकर के बाद हमारे पास एक तीसरे सहाफ़ी हैं जिनकी अहमियत हमें समझनी चाहिए कि वह मुंशी नवल किशोर है। गदर के फौरन बाद मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार शुरू किया था 1858 में। मुंशी नवल किशोर को हम ज्यादा याद रखते हैं उनके पब्लिकेशन हाउस की वजह से। उन्होंने किताबों के छापने का ऐसा बाज़ाब्ता कारोबार और सिलसिला शुरू किया कि जब एक साल की उनकी किताबों की फहरिस्त छपी तो वो 400-500 सफ़ात में शाये हुई। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा पब्लिकेशन हाउस हो गया और पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान जो आज नज़र आता है, बांग्लादेश, ये जो पूरा जो उस वक्त का हिंदुस्तान है उसमें उर्दू किताबों की सबसे बड़ी खेप उन्हीं के ज़रिए तैयार होती थी और मार्केट होती थी। मगर उन्होंने ये काम शुरू किया था अपने अखबार से
और वो अखबार भी उसी तरह से, उनका जहन कारोबार को समझने वाला था, अपनी सहाफत को समझने वाला था। हमने जब इस मौजू पर गौर किया कि भाई उन और कौन कौन से काम करते थे, तो मुंशी नवल किशोर के यहाँ से जो डिक्शनरी के अलावा ख़ास तौर से वहाँ की शायशुदा कुरान की भी बड़ी शोहरत थी कि उन्होंने जदीद अंदाज़ तबात से कुरान शाये किया था। हमने अपने एक दोस्त को कहा कि इस मौजू पर ज़रा तहकीक कीजिए कि आखिर उसके छपने का क्या एहतमाम था, और मुंशी नवल किशोर जो ज़ाहिर है कि वो उनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं था, लेकिन मज़हब इस्लाम की जो सबसे मुक़द्दस किताब है उसकी इशाअत का सिलसिला कैसे होता था। तो जब मालूम हुआ कि वो ऐसे प्रोफेशनल ज़हन के आदमी थे कि जब तक कुरान की छपाई होती रहती थी, पूरे प्रेस में कोई बेवज़ू नहीं हो सकता था, प्रेस में दाखिला भी वज़ू करके ही जाना होता था। तो जो शख्स दूसरे मज़ाहिब के बारे में ऐसा ख़्याल रखता हो, ये उनके प्रोफ़ेशन का भी पार्ट था, इसको वो समझते थे। और यही वजह है कि अवध अखबार ने बाद के ज़माने में ये दिखाया। मौलवी बाकर वो काम नहीं कर सके थे कि अखबार फैले, मुल्क भर में फैले। उससे ज़्यादा असदुल अखबार की इशाअत के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, मगर अवध अखबार ने तो ये साबित किया कि वो मुल्क के तूलो अर्ज में जाए। थोड़ी थोड़ी कॉपियां उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाने लगी थी, और उत्तर प्रदेश का सबसे मकबूल अखबार अवध अखबार हो गया। अवध अखबार ने कोशिश की कि जो एक बड़े अखबार को ये काम करना पड़ता है कि अब सीधे हम ब्रिटिश क्राउन के मातहत थे, तो ब्रिटिश क्राउन के साथ, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के मुजाहिदीन के साथ, अवाम के साथ और उनके मसाइल के साथ किस तरह से नेगोशिएट किया जाए, किस तरह से स्टैंड लिया जाए, एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर वो अखबार चला। और इसीलिए कहा जाता है कि 1857 के बाद के नाजुक दौर में अगर मुंशी नवल किशोर ने उर्दू सहाफ़त को सहारा न दिया होता, तो हमारे अखबारात फिर ताज़ा दम ना होते, और मौलवी मोहम्मद बाकर की शहादत के बाद सब कहीं ना कहीं हारे हुए महसूस करते। ये भी इत्तेफाक है कि मौलवी ये जैसे ही मुंशी नवल किशोर के काम आगे बढ़ने लगे, उस दौर में दिल्ली, अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में काम करते हुए सर सैयद अहमद खां हमारे सामने आते हैं। ये कहने की बात नहीं है कि 19वीं सदी का अगर हम निस्फ आखिर अपने सामने रखें, तो इस मुल्क में सर सैयद से बड़ी कोई शख्सियत नहीं है। समाजी, सियासी और तालीमी ऐसी कोई शख्सियत नहीं है। जितना बड़ा ज़हन है सर सैयद ने, जिस काम में जो जिसे कहते हैं कि एक पारस पत्थर जिसे कहते हैं कि पत्थर पे रगड़ दें तो वो सोना हो जाए, तो सर सैयद अहमद खां एक ऐसे ही शख्स थे जिन्होंने जिस मौजू को हाथ लगाया उसे मुंतहा तक और उसे बुलंदी तक पहुंचाया। सर सैयद अहमद खान ने अपने अपना एक अखबार और एक रिसाला निकाला। कहने को इंस्टीट्यूट गज़ट और तहज़ीबुल अखलाक, ये दो एक अखबार एक रिसाला है। तहज़ीबुल अखलाक पर तो बाज़ाब्ता ये छपता था कि जिस तरह के इंग्लैंड में टैटलर और स्पेक्टेटर निकले, उसी तर्ज पे हम ये रिसाला जारी कर रहे हैं। मगर सर सैयद उससे बड़ा काम कर रहे थे। सर सैयद ने उर्दू ज़बान को सामने रखा और उर्दू ज़बान के मिजाज को बदलने की कोशिश की। वो सिर्फ सहाफ़त की ज़बान नहीं, उसी अखबार और उसी रिसाले से उन्होंने उर्दू ज़बान को अंदर से बदलने की कोशिश की। उनके बाद हमारे अहद की शायरी बदल गई, हमारी दास्तान गोई दूसरे अंदाज में होने लगी, हमारे यहाँ नॉवेल जैसा जैसी जदीद सिन्फ सामने आ गई, हमारे यहाँ तनकीद आ गई, खुतबात आ गए, हमारे यहाँ मुसद्दस आ गई और न जाने क्या क्या आ गया। तो जो कहते हैं कि नॉन फिक्शन प्रोज का हम दास्तानों में सिर्फ सिमटे हुए थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने अपनी सहाफत के जरिए ये मौका दिया कि हम मजमून नवीसी करें,
वक्त के मिजाज को समझें और उसके मुताबिक हम अपने अदब को पेश करें। तो इस एतबार से अगर सर सैयद की ये सहाफत नहीं रहती तो शायद हम ये काम नहीं कर सकते। और जिसे कहते हैं कि हम नए अहद में 1857 के बाद, जिसे रेनेसा हम कहते हैं, नई बेदारी कहते हैं, तो नई बेदारी के बाद हमें नए अहद तक पहुंचना था। तो अगर सर सैयद जैसा कायद न होता और सर सैयद के पास ये अखबार और रिसाला न होता तो हमें यकीन है कि हम नए अहद में नहीं जा पाते और शायद हम में उसी पुरानापन, उसी बोसीदगी में हम उलझे रहते या तनात करते। मैं सर सैयद के फैजान पर कुछ तफसील से इसलिए बात अभी नहीं करना चाहता कि कल प्रोफेसर शाफे क़िदवाई इस मौजू पर तफसील से रोशनी डालेंगे। सर सैयद की सहाफ़त के सिलसिले से बेशक असगर अब्बास साहब और शाफे क़िदवाई ये मुल्क में अथॉरिटी हैं, इन्होंने तहकीक की है, तो शायद इस मौजू पर वो मज़ीद रोशनी डालें और तफसीलात में जाएं। मैं तफसीलात में जाना अभी ज़रूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन सर सैयद के साए में हम पूरी 19वीं सदी गुजार लेते हैं। 19वीं सदी में सर सैयद ने जिन लोगों को पैदा किया, सर सैयद की तहरीक ने जिन लोगों को पैदा किया, उन्हीं की तहरीरें हमारे अखबारात में, हमारे रसायल में और हर जगह दिखाई देती हैं। चाहे वो नज़ीर अहमद हों, शिबली हों, हाली हों, ज़काउल्लाह हों और मोहम्मद हुसैन आज़ाद हों, सब के सब ने कोशिश की कि हमारी नस्र के दायरे को बढ़ाएं। और ये नस्र का जो दायरा बढ़ रहा था वो उसी सहाफत के हवाले से बढ़ रहा था। हर जगह अखबारात, रसायल शुरू हो रहे थे और उनमें लिखने का काम चल रहा था। तो ये 19वीं सदी का पूरा यही सिलसिला है जो सर सैयद की क़यादत में, पहले मुंशी नवल किशोर और फिर उसके बाद गदर के बाद सर सैयद की क़यादत में हमने ये सफ़र किया। सर सैयद 1898 में इस दुनिया से गुजरते हैं और फिर हम नई सदी में आते हैं। 20वीं सदी का जो आगाज होता है वो सबसे फर्टाइल दौर है कि अगर आप देखें तो कभी कभी किसी दौर में जिस तरह से सर सैयद को ये मिला कि उनके रफ़क़ा ऐसे थे जो अपने आप में, हर आदमी एक अपने आप में अंजुमन है। वो 5 की जरूरत नहीं, उसमें कोई एक है, वो उसी तरह का है। और सर सैयद के वो चुने हुए और पाले हुए और तरबियत याफ्ता लोग थे। उसी तरह से 20वीं सदी का जो आगाज होता है, तो 20वीं सदी के अगर इब्तदाई 25 बरस नजर में रखें तो एक तरफ हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जौहर और जफर अली खान, ये सिर्फ 4 नाम आप अपने जहन में रखें और आप ये देखें कि ये कौन लोग हैं। एक तरफ हमें याद है कि ये सब बाद में हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के बड़े मुजाहिद तस्लीम किए गए और हिंदुस्तान को जो गुलामी से निजात मिली उनमें इनका बड़ा काम है। इनके कलम का और इनकी तकरीर का और इनकी कोशिशों का बड़ा अहम हिस्सा है। मगर याद रखिए कि इनकी तरक्की कैसे होती है, ये किस तरह से हिंदुस्तान की किस्मत को बदलने के लिए मैदान में आते हैं। आपको याद होगा कि हजरत मोहानी शायर तो थे, मगर हजरत मोहानी ने अपना अखबार निकाला, अपना रिसाला निकाला। सिर्फ उसमें अदब नहीं शाये होता था, हजरत मोहानी ने कोशिश की कि उस जमाने के जो समाजी मसाइल हैं, जो सियासी मसाइल हैं, उस पर रोशनी डालें। उर्दू मुअल्ला को अगर कोई समझता है कि वो कोई अदबी काम के लिए निकला था तो वो उसका एक ज़िम्नी हिस्सा है। उर्दू मुअल्ला का सिर्फ वो काम नहीं था। उसी तरह से अबुल कलाम आज़ाद 1903 में जब लिसानुस्सिद्क़ निकालते हैं, फिर लिसानुस्सिद्क़ के बाद अल हिलाल और अल बलाग, 1916 तक ये सिलसिला खत्म हो जाता है। अबुल कलाम आज़ाद उसके बाद कुछ सहाफ़ी नहीं है, लेकिन अल हिलाल और अल बलाग किसी को आज अगर तारीख़ का तालिब इल्म नहीं है बाज़ाब्ता, जिसने तहक़ीक़ी चीज़ें न पढ़ी हैं, तो उसको कभी याद आ सकता है कि अल हिलाल महज़ 2 बरस के लिए निकला था, अल बलाग महज़ 2 बरस के लिए निकला था।
इम्पैक्ट फैक्टर उसका देखें कि उसके असरात क्या हुए, तो मालूम हुआ कि हमारी आज की सहाफत भी कहीं ना कहीं अल-हिलाल के जलवों में मुब्तला है। उसके असर से वो बाहर नहीं हो सकती है। तो कुछ चीज़ों के असरात इतने बड़े होते हैं, उन्हें आप 2 बरस की तराजू पे न तौलिए। उनको अगर 4, 10 या 100 हज़ार रीडर मिले, इस पर मत जाइए। आप देखिए कि वो अखबार किस तरह से दूसरे को और कौम को और उस पेशे को मुतासिर कर रहा था। अबुल कलाम आज़ाद ने जब अल-हिलाल निकाला, उस वक्त भी उनकी उम्र सिर्फ 24 बरस थी। मगर पहले शुमारे में देखिए कि पहले शुमारे में वो शख्स कहता है कि हम किताबत पर अखबार न शाये करेंगे, लिथोग्राफिक को हम छोड़ेंगे और हम इसे टाइप पर लाएंगे। यह इतना बड़ा, ये लिथोग्राफिक से टाइप पर आना, ये इतना बड़ा काम था जो आसानी से हम आज का आदमी ये समझ नहीं सकता है कि वह क्या चेंज हो रहा है। लेकिन अखबार मशीनी अहद में आए और जो दुनिया भर में फैलना है, ज्यादा अगर छपाई होनी है तो किस तरह से होगी और हम टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करेंगे, इसका अबुल कलाम आज़ाद के पास पहले दिन से तसव्वुर था। अबुल कलाम आज़ाद के पास यूं तो उनकी रवायती तालीम सिर्फ मजहबी थी, मगर अबुल कलाम आज़ाद पर जब उस जमाने की तहरीरें देखिए तो वह अब लिसानुस्सिद्क में एक मजमून लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि गुलामी में रहना, या गुलामी से लड़ना सिर्फ हमारा एक मजहबी फरीजा भी है। उस जमाने में कौन ऐसा आलिम दीन था जिसको ये बात कहने की हिम्मत हो कि गुलामी जो है, भाई ये दूसरा कहेगा कि ये सियासी काम है, मगर अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि नहीं, सियासी और समाजी ही नहीं, ये हमारा मजहबी फरीजा है और इसलिए हमें गोलबंद होना चाहिए, मुज्तमे होना चाहिए। और ये अंग्रेजों बात 15 बरस का बिल्कुल नौजवान ये बात समझता है। तो जब इतनी पुख्तगी होगी, फिक्री तौर पर इतनी ठोस तैयारी होगी, तब मुमकिन हुआ कि 2 बरस में अल-हिलाल ने ऐसा माहौल बना दिया कि लगता है कि उस जमाने में हिंदुस्तान का कोई अखबार ही नहीं था। और वही बुनियाद थी कि भाई जब दोनों अखबारात पै ब पै बंद हुए और जब 1915 में अलबलाग बंद हो गया और उन्हें नजरबंद किया गया रांची में, जब वो पहुंचे तो 1916 में जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए जा रहे हैं तो पटना में उन्होंने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, दरखास्त दी, मगर मुलाकात की गुंजाइश नहीं पैदा हुई। आप याद रखिए कि अबुल कलाम आज़ाद की हैसियत सिर्फ एक सहाफ़ी की है और वह भी कि उसको नज़रबंद किया गया है। लेकिन महात्मा गांधी जानते थे कि इस आदमी का इम्पैक्ट क्या होगा और यह आदमी अगर कांग्रेस के हल्के में आएगा तो इस मुल्क को क्या मिल जाएगा। और महात्मा गांधी उनको फॉलो कर रहे थे। वे जब 31 दिसंबर 1919 को अबुल कलाम आज़ाद को की रिहाई होती है, लेकिन 3-4 दिन लग गए उनको बेल का फाइनल होने में और वहां से रुखसत होते हैं। और 10 जनवरी को 10 जनवरी 1920 को महात्मा गांधी कलकत्ता में जाकर अबुल कलाम आज़ाद से मिलते हैं। आप उस अबुल कलाम आज़ाद के पास सिर्फ सहाफत थी और कुछ नहीं था, लेकिन उस सहाफत में कि महात्मा गांधी 4 बरस उनको फॉलो कर रहे हैं और किसी तरह से मुलाकात हो जाए। और 10 जनवरी को 1920 को मिलते हैं कलकत्ते में और ऑफर करते हैं कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस में आइए और फिर स्पेशल सेशन होना है दिल्ली में। अबुल कलाम आज़ाद शामिल होते हैं कांग्रेस में और देखते देखते 3 बरस में अबुल कलाम आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर हो जाते हैं। 35 बरस में कोई सदर नहीं हुआ। तो आप अंदाज कीजिए कि अबुल कलाम आज़ाद को किस बुनियाद पे इतनी अहमियत हासिल हुई।
या अबुल कलाम आजाद को महात्मा गांधी ने इतना चीज क्यों किया, वो उनकी सहाफत थी और उस सहाफत का जो असर था। महात्मा गांधी पूरे मुल्क में घूम रहे थे तो उनको भी पता है कि उर्दू के किस अखबार के या किस सहाफी की बातें उर्दू वाले या हिंदुस्तान भर के लोग सुन रहे हैं। उसी तरह से हमारे पास उस वक्त सहाफी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। बाज़ाब्ता तालीम तो उनकी अंग्रेजी की थी, कॉमरेड अखबार भी निकाला, लेकिन उसके साथ साथ हमदर्द अखबार भी निकाला। वो जानते थे कि उस वक्त हालांकि फ्रीडम मूवमेंट में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनमें से अक्सर ने अंग्रेजी अखबार निकाला, चाहे वो गांधी जी हो चाहे तिलक हो, मगर मोहम्मद अली जौहर जानते हैं कि हमको उर्दू जबान के सहारे के बगैर हम अपनी बात पूरे मुल्क में नहीं पहुंचा सकते हैं, और उन्होंने हमदर्द निकाला। हमदर्द अखबार के जब मुश्तमिलात पढ़िए तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस जमाने के सबसे तालीम याफ्ता लोगों में थे, तो वो विजन भी उनका सामने आता है, समझ में आता है, और एक रोशन ख्याल, तरक्की पसंदाना नुक्ते नजर से वो अपनी बातें कहते हैं। एक जज्बातियत थी मोहम्मद अली जौहर में, वो जज्बातियत भी उसमें है जो अबुल कलाम आजाद में उस जमाने में नहीं थी। ये दोनों के सहाफत का एक फर्क भी है, इसलिए जब सहाफी का इम्पैक्ट जब देखते हैं तो अबुल कलाम आजाद का जौहर के मुकाबले ज्यादा है। मगर उसी वक्त एक और सहाफी आता है जिसे हम जफर अली खान कहते हैं। ये सब 1903 से लेके 1913 तक में ये सारे अखबारात निकल गए हैं, और सारे अखबारात मशहूर। तो जमींदार लाहौर से निकलना शुरू हुआ। जमींदार पहले ही से निकल रहा था, लेकिन जब जफर अली खान ने 1913 में उस तरफ तवज्जो की और वो एडिटर हुए, तो लाहौर में पूरे जो पुराना पंजाब है उस पंजाब में सबसे लीडिंग अखबार हो गया। जफर अली खान की ताकत ये थी कि वो नस्र नज्म दोनों में यकसा कुदरत रखते थे, कलम के मुजाहिद थे, और उन्हें वतन परस्ती आती थी, वतन परस्ती को समझते थे, वतन के सिलसिले से कमिटमेंट क्या होता है ये भी समझते थे। उस जमाने के बड़े मुकर्रिरीन में भी नाम उनका आता है। जफर अली खान ने एक और काम किया कि आज जो हम किसी खास मौजू पर पब्लिक ओपिनियन लेते हैं तो इसका मौका दिया। जमींदार अगर देखें तो मालूम होता है कि एक एक 100 किस्तें शाये हुई कि लोगों को कहा कि इस मौजू से आप लिखिए और अपना ओपिनियन दीजिए, मुसलमान क्या करें, आज इस तारीखी मोड़ पे मुसलमान क्या करें, फला किसी भी और मौजू पर एक सिलसिला छेड़ दिया और लोगों का ओपिनियन लेते थे। यह मौका, इससे उस अखबार का दायरे असर बढ़ा। वो सिर्फ पंजाब का और लाहौर का अखबार नहीं रहा। कहा जाता है कि उसके पहले जमींदार के पहले लाहौर का सबसे मजबूत और बड़ा अखबार होता था पैसा अखबार, और एक वो इनोवेशन उस अखबार को कारोबारी जहन से वो निकला था। मगर जैसे ही जमींदार शाये हुआ उनका सब का सिलसिला बंद हो गया और जमींदार सबसे मकबूल अखबार हो गया, और पंजाब से बाहर निकलकर पूरे हिंदुस्तान में वो अखबार पढ़ा जाता था। उसके और उसकी चीजें निकलती थी, उसको कोट होती थी। उस जमाने में एक बहुत अच्छा चलन था जो आज के हमारे जमाने में नहीं है, कि एक अखबार दूसरे अखबार को कोट करते थे, उनकी खबरों को, उनके मजामीन को, और बाज़ाब्ता हवाला देकर कोट करते थे। तो जो वसाइल कम थे तो भाई पंजाब की खबर अगर बिहार में नहीं आ रही है तो बिहार का अखबार पंजाब के किसी अखबार के हवाले अपनी बात कहता था। इस तरह से बातें फैलती थी। तो ये रोजनामों के दौर का ये सबसे बेहतरीन जमाना माना जाना चाहिए, जब हम आज़ादी की जंग में मुब्तला थे और हमारा कोई भी बड़ा जर्नलिस्ट उसके बाहर नहीं था, सब उसमें शामिल थे। तो जो इब्तदाई दौर में 1925 तक अगर देखें तो ये सारे अखबारात सामने आते हैं और ये सारे जर्नलिस्ट हमारे पेश नज़र होते हैं। इसी बीच एक अखबार हिंदुस्तान में शुरू होता है, आज़ादी के ठीक पहले शुरू हुआ, और उसी मूवमेंट से निकला हुआ अखबार है जिसे हम कौमी आवाज़ कहते हैं। कौमी आवाज़ को जवाहरलाल नेहरू उसके बानी मुदीर हैं, और हयातुल्लाह अंसारी ने अखबार निकाला।
अभी तक हमारा जो अखबार था उसमें नए मौजूआत पर बहस होती थी, नए नए सवालों पर बहस होती थी। अंग्रेजी के अखबारों के तराशे भी उसमें शामिल होते थे, और एक कौमी एतबार से जो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए या जंग आज़ादी में लोगों का रोल क्या हो, इस पर तो गुफ्तगू हो रही थी। मगर कुछ और सवाल थे। ये भी सवाल था कि अब तो हमें आज़ादी मिलनी है, अब एक नई मुमलिकत होगी, आज़ाद मुमलिकत होगी, तो आज़ाद मुमलिकत की क्या तैयारी होनी चाहिए। और देखते देखते वो आज़ादी मिल गई। तो हयातुल्लाह अंसारी की निगरानी में कौमी आवाज में पहली बार बहुत सारे ऐसे काम हुए। प्रोफेशनलिज्म तो हम में आ चुका था, मगर ये न्यूज़पेपर किस तरह से निकलना चाहिए, उसके कॉलम के उसूल क्या होंगे, उन्वानात कैसे होंगे, तराजिम का क्या शऊर होगा, अरबी फारसी के की तराकीब हैं उनको किस तरह से लिखा जाए, क्या उनको तब्दील किया जा सकता है। ऐसे सैकड़ों सवाल थे जिन्हें हमारी ज़बान के बड़े अफसाना निगार और नावल निगार हयातुल्लाह अंसारी हैं, लेकिन ये बुनियादी काम किया और कौमी आवाज़ ने उर्दू की नई सहाफ़त की दाग बेल रखी। कौमी आवाज़ से पहले की जो सहाफ़त थी, वो थी हमारी पुरानी सहाफ़त, और रोज़नामा जैसे चलना चाहिए, अंग्रेज़ी के रोज़नामे कैसे चल रहे थे, उस तरह से हयातुल्लाह अंसारी ने कोशिश की। एक और बड़ा काम किया हयातुल्लाह अंसारी ने, और बहुत ही होशमंदी से किया, कि उन्होंने अदीबों को, शायरों को अपने अखबार में मुलाज़मत दी। ये याद रखिए कि बहरहाल अखबार चाहे किसी ज़बान में भी हो, लेकिन लैंग्वेज उसका, अगर उस लैंग्वेज का जानने वाला है, ज़बान का बेहतर जानने वाला है, तो उससे हम काम ले सकते हैं। तो जब कौमी आवाज़ की तारीख़ आप पढ़िए, तो उसमें अहमद जमाल पाशा, आबिद सुहैल, उस्मान गनी, हसन कमाल, महमूद अय्यूबी, ये सब ऐसे लोग हैं जो कौमी आवाज़ में के शुरू के रिक्रूटमेंट में लोग आए थे। और इनकी वजह से हयातुल्लाह अंसारी को मौका मिला कि उन्होंने ज़बान के तर्जुमे के तजर्बे किए। उन्होंने कोशिश की कि कॉलम निगारी, तो हर आदमी को अलग-अलग तरह के जिनका जैसा मिजाज था, उसके हिसाब से कॉलम उन्होंने तय कर दिए, और उर्दू में इंडिपेंडेंट कॉलम लिखने का रिवाज बाज़ाब्ता तौर पर उसी अखबार ने शुरू किया, जो आज तक अब तरक्की याफ्ता शक्ल में हमारे ज़माने में है। कौमी आवाज़ ने थोड़े दिनों बाद ये भी कोशिश की कि मल्टी सिटी एडिशन निकले। कौमी आवाज़ लखनऊ, लखनऊ से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर पटना, ये 3 जगह से वो अखबार उस ज़माने में निकला, और एक तसव्वुर उन्होंने हमें दिया कि मल्टी सिटी एडिशन कैसे निकाले जाएँ, जो आज ज़ाहिर है कि बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से, उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी वैसी नहीं थी कि एक एडिशन से दूसरे एडिशन का कोई उस तरह से राब्ता नहीं हो सकता था। मगर बाद के ज़माने में इसकी सहूलियात हमें मैसर आई, राष्ट्रीय सहारा, और उसी तरह से इनकलाब ने इस बात को आगे बढ़ाया। फिर और भी कई छोटे-छोटे ऐसे अखबारात हैं जिन्होंने कभी 2 शहर से, कभी 3 शहर से, अभी 15-16 शहरों से एक तासीर अखबार है वो निकल रहा है, कौमी तंजीम 3 शहरों से निकल रहा है। तो ये जो मल्टी सिटी एडिशन का एक तस्वुर सामने आया कि एक अखबार कई शहरों से निकले, और मकामी खबरों पर जो हिंदी और अंग्रेजी के अखबारात जोर दे रहे थे, उस मैदान में भी उर्दू अखबारात ने अपने हाथ फैलाए और अपनी जड़ें मजबूत की, और नई सूरत हाल सामने आई। आज का जो उर्दू अखबार है, वो अब अगर इनकलाब है, तासीर है, तो ये 15-16 शहरों से निकलते हैं और 7-8 सूबों से निकलते हैं। तो अब ऐसे अखबारात कभी बहुत मुकम्मल तौर पे ना रीजनल हो सकते हैं, ना आप उनको छोड़ दें कि उसी हाल में वो रह जाएँ, ये मुमकिन नहीं है। उनको एक नेशनल टेम्परामेंट एक क्रिएट करना होता है अपने सफ़हात पर, और कोशिश करनी होती है कि पूरा मुल्क, और पूरे मुल्क के अलावा पूरी दुनिया की खबरों को वो सामने रखें। तो इस तरह से आज हमारी ज़बान के ऐसे अखबारात निकल रहे हैं। एक बात ख़ास तौर से मौजूदा मंज़रनामे पे नज़र रखते हुए ये बात काबिल गौर है कि जब हम
अल हिलाल की बात करते हैं, जब हम हमदर्द की बात करते हैं, जमींदार की बात करते हैं, तो उस मुआशरे के ये बड़े अखबारात थे। उस जमाने में अल हिलाल की खबरें, जमींदार की खबरें उस जमाने के हिंदी और अंग्रेजी अखबारात में तर्जुमा होकर शाये होती थी। उनके एडिटोरियल्स ट्रांसलेट होकर वहां छपते थे, और बड़े एहतमाम से कि उर्दू के बड़े अखबार के में यह बात शाये हो रही है। उन उर्दू अखबारों का जो आउटलुक था, टेक्नोलॉजी की कमी के बावजूद वो पूरी दुनिया पर नजर रखते थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या बहस हो रही है, टर्की में क्या हो रहा है, खलीज के ममालिक में कौन सी बातें हो रही हैं, उन पर नजर रखते थे और उनकी बातों को दुनिया में गौर से सुना जाता था। इससे अगर 100 बरस बाद के अभी के ज़माने को हम सामने रखें तो मायूसी होती है कि आज उर्दू अखबारात ज़्यादा अच्छे से, व सलीक़े से, खूबसूरत तरीक़े से, और जैसे अंग्रेज़ी और हिंदी के अखबारात छप रहे हैं उसी अंदाज से शाये होते हैं। मगर आज के उर्दू अखबारात की बात न इतनी दूर तक सुनी जाती है और न उनके तराशों के तराजिम दूसरे अखबारात लेते हैं। अगर इनएविटेबल हो जाए, आप नागज़ीर हो जाएं, आपने कोई ऐसी बात कही है जो मुल्क में वैसा दूसरा सोचता हुआ ज़हन नहीं है, तो अंग्रेज़ी अखबार को भी तर्जुमा करना पड़ेगा। लेकिन उर्दू अखबारात ने आज से 100 बरस पहले का जो माहौल था, जिनमें हमारी ज़बान के अखबारात, हमारे ज़बान की सहाफ़त ने वो नागज़ीरियत पैदा की थी, आज हमारे अखबारात उस मकाम पर नहीं हैं। यह अफ़सोसनाक बात है। हमारी तादाद इशाअत बढ़ी है, मगर उर्दू पढ़ने वालों की तादाद के मुकाबले में देखें तो वह बहुत महदूद है, और हिंदी और अंग्रेजी के रीडर्स के सामने देखें तो वो और भी महदूद है। तो इस तौर पर अगर अखबार को, आज के अखबार के सामने जो एक मेजर चैलेंज है कि क्या उर्दू सहाफ़त उस क्रेडिट को जो हमारे साबिक़ीन के सहाफ़त थी, उस क्रेडिट को हासिल कर सकती है? क्या उर्दू सहाफ़त अपने को बदल सकती है, मेयार के एतबार से, कबूलियत के एतबार से, और अपने अफ़कार और नज़रियात के एतबार से? क्या इस मुल्क की दूसरी ज़बानों की सहाफ़त के वो हम पल्ला हो सकती है? ये बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को मीट किए बगैर, इसको समझे बगैर और इसकी बुनियादों पर गौर किए बगैर हम उर्दू सहाफ़त की 2 सदी की न तक़रीबात मना सकते हैं, न 2 सदी का एहतसाब कर सकते हैं। आज जब हम एहतसाब कर रहे हैं तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि जब हम कहते हैं कि ये 4th स्टेट है, ये जो हमारी सहाफ़त है, वह हमारी ये जो डेमोक्रेसी है उसका चौथा खंभा है, और इसके बगैर हमारी डेमोक्रेसी का जो तंबू है वो उखड़ जाएगा, खेमा गिर जाएगा। तो जब इतनी इम्पोर्टेंट इसके लिए बात कही जाती है तो उसकी जिम्मेदारियां भी हैं, उसके फराइज भी बड़े गहरे हैं, और इन फराइज में कुछ बातें हैं जो उर्दू अखबारात आज के लैक कर रहे हैं। उनमें वो बात नहीं है, उनमें वो बुनियादी सिफत नहीं है। बुनियादी सिफत सबसे बड़ी ये है कि आज अखबारात में, उर्दू अखबारात में कोई ट्रेनिंग का माहौल नहीं है। रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं, हमने जब हिंदी अंग्रेजी के अखबारात में जब लोग काम करने के लिए जाते हैं, दस्तकें देते हैं, तो उनकी 4 तरह से इम्तिहान लिया जाता है, उनकी स्क्रीनिंग होती है। लेकिन इस ज़माने में भी उर्दू अखबार में ऐसी कोई स्क्रीनिंग का सिस्टम नहीं। हमने जैसे चाहा, जिस तरह से चाहा लोगों को अपॉइंट कर लिया। उनको, उनकी इल्मी सतह क्या है? क्या अखबार के में काम करने के लिए, अखबार में सब एडिटर बनने के लिए क्या सिर्फ बीए एमए काफ़ी है? ज़बान व अदब की सिर्फ तालीम काफ़ी है? या उसे मुल्क के बारे में, दुनिया के बारे में उसकी कुछ सूझबूझ है, समझ है? सहाफ़त के तकाज़ों को क्या वो समझता है? सहाफ़ी को स्पॉन्टेनियस राइटिंग करनी होती है, फौरी तौर पर लिखना होता है। आज आप बैठे हुए हैं, अचानक खबर मिलेगी कि भाई अब महात्मा गांधी का जिस वक्त इंतकाल हुआ, उन्हें गोली मारी गई, जो सहाफ़ी वहां बैठा है उस वक्त उसे लिखना है।
अगर ट्रेनिंग नहीं है, हमें रिसर्च ट्रेनिंग नहीं है, हमें किन किताबों से कैसे इस्तेफादा करना है, सिर्फ आज का सहाफ़ी इंटरनेट समझता है और उसको अगर कुछ डाउनलोड कर लिया, उसके क्रेडिट को अगर नहीं समझता है, लफ्ज़ों के तराजिम को, उसकी असनाफ को नहीं समझता है, उसमें क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, उसको किस तरह से उस एविडेंस को कोरैबोरेट करना है, उसकी तस्दीक़ नौ कैसे करनी है, अगर ये नहीं जानता है, इसके लिए कोई उसकी तरबियत नहीं हुई है, तो वो जर्नलिस्ट नाकाफ़ी होगा और वो नाकाम हो जाएगा। हमारे अखबारों में एक तो इंटरनल ट्रेनिंग का कोई तसव्वुर नहीं है। रिक्रूटमेंट भी आप नेगोशिएशन पे करते हैं, आप रिक्रूटमेंट का कोई बोर्ड नहीं बनाते हैं, उनका एक मल्टी लेवल एग्जामिनेशन नहीं लेते हैं, एग्जामिनेशन लें आप फिर उसके बाद इंटरव्यू लें, 2-3 लेयर में अगर रिक्रूटमेंट करें तो हो सकता है कि ऐसे लोग मिलें जो सहाफत के पेशे के लिए माकूल लोग हों। सहाफत पेशा जिस तरह से टीचिंग का पेशा है, तो टीचिंग के लिए खास ज़हन चाहिए, हर आदमी उस्ताद नहीं हो सकता है, उसी तरह से हर आदमी सहाफ़ी नहीं हो सकता है। अब सियासतदान से जो डरता हो, किसी बड़े डॉन का इंटरव्यू लेना है उससे डरता हो, तो सहाफ़ी क्यों? वो मुझे इरफान सिद्दीकी का शेर याद आ रहा है कि रेत पर थक के गिरा हूँ तो हवा पूछती है, रेत पर थक के गिरा हूँ तो हवा पूछती है, आप इस दश्त में क्यों आए थे वहशत के बगैर। तो जिसे सहाफ़ी बनना है, जिसे उर्दू सहाफ़त में कुछ आगे बढ़ना है, उसको याद रखना चाहिए कि इसका बड़ा सहाफ़ी गदर में शहीद हुआ था। इसके सहाफ़ी हसरत मोहानी, हिंदुस्तान के कोई सियासी लीडर उससे ज़्यादा जेल में न रहा हो। 5 बार अबुल कलाम आज़ाद जेल गए, मोहम्मद अली जौहर जेल जाना और आने का सिलसिला रहा, यहाँ तक कि कब्र के लिए भी जो ज़मीन थी अपने वतन में ना मिल सकी। तो हमारे जर्नलिस्ट ऐसे हुए और जो नाम जिनका है और जिन्होंने इस पेशे की तक़दीस को और उसके मेयार को बचाया, तो क्या आज का जर्नलिस्ट उर्दू जो सहाफ़ी है इसको निभा सकता है, इसके तकाज़ों को समझ सकता है? ये नहीं हो रहा है। और कोई भी अखबार जो बड़ा से बड़ा अखबार हो, जो कॉरपोरेट घराने से निकल रहा, उस अखबार में भी मैंने कभी कोई ट्रेनिंग की बात नहीं देखी। तो ये बड़ा चैलेंज है कि हमारा सहाफ़ी क्या अंग्रेज़ी और हिंदी के अखबारों के बराबर खड़ा हो सकता है? उसकी इल्मी सलाहियत, उसकी ज़बान की सलाहियत, उसकी फ़िक्री सलाहियत उस सतह की है कि वो ये जो 200 बरस की हमारी तारीख़ तो है, मगर क्या हम मेयार में आगे बढ़ रहे हैं या गिरावट आ रही है? इसको जाँचने के लिए हमको कंटेम्परेरी जर्नलिज़्म पर ज़रूर तवज्जो देनी होगी और इस तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी सहाफ़त फिर से वो जो हम ढलते हुए, गिरते हुए आ रहे हैं सीढ़ी पे, तो कहीं खड़े हो सकते हैं और जब खड़े हो जाएँगे तो फिर से पलटकर, क्योंकि हमारी इतनी मुस्तनद, मुस्तहकम तारीख़ है और उस तारीख़ में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि हम 1947 से पहले के जो अखबार की तारीख़ है या हमारी सहाफ़त की तारीख़ है, तो क्या हिंदी अखबार और और अंग्रेज़ी जो सहाफ़त थी उस ज़माने की, उसके मुकाबले उर्दू सहाफ़त एक हेच सहाफ़त नहीं है, बल्कि उस ज़माने की सहाफ़त हमारी बराबरी करती थी और उस ज़माने के हमारे सहाफ़ी देसी सहाफ़त से वो एक मर्तबा रखते थे, जो आज हमारी सहाफ़त नहीं रखती है। तो सहाफ़त नहीं रखती है तो इसमें गिरावट की वजहें हैं और इसको समझना होगा। एक बड़ा मसला उर्दू सहाफ़त में ये भी आता है कि सहाफ़त में जो वेजेस का तसव्वुर है, वो माक़ूल नहीं है। अगर आप वेज ठीक न देंगे, तो अपने वक़्त के जो ज़हीन लोग हैं, अपने वक़्त के जो बड़े लोग हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, वह लोग क्यों आएँगे इधर? जिनको उससे ज़्यादा रकम दूसरे जॉब में मिल जाए, वो क्यों आपके यहाँ आएँगे? आज टेलीविज़न में, आज कुछ अंग्रेज़ी के अखबारों में कभी-कभी सुनने में आता है कि कोई बड़ा जॉब छोड़कर चला आया और वो सहाफ़त में शरीक हो गया। वो इसलिए भी शरीक होता है कि इकोनॉमिकली वो फ़ीज़िबल है, इसलिए आया। लेकिन उर्दू सहाफ़त में जो तनख़्वाह का मामला है, चाहे बड़ा अखबार हो, कॉर्पोरेट घराने का अखबार हो या जो बिल्कुल गली मोहल्ले का कोई
मालिक हो, जो अखबार निकाल रहा हो, वो दोनों बेइंसाफी कर रहे हैं और जो वेजेस हैं वो ठीक नहीं है। इसकी वजह से जो एक इंटरमीडिएट पोजीशन होती है उर्दू सहाफ़ी की, कि वो बेरोजगारी के दौर का मुकाबला करने के लिए वो हमारी सहाफ़त से जुड़ता है और फिर उसे कोई माकूल जॉब मिल जाती है तो वो चला जाता है। तो वैसे सहाफ़ी को अगर वो बासलाहियत है तो हमें रोकना पड़ेगा और रोक कर उससे काम लेना है, और उसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि उसकी जो सलाहियत है और दुनिया में जो उसे और जगह से पैसे मिल सकते हैं, उतनी रकम उस पे खर्च करनी पड़ेगी। जब हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें तो वो सहाफ़त से हमें कुछ मिलेगा भी, फ़ायदा भी मिलेगा। आप याद रखिए, हमारे सामने बड़ी आसान मिसाल कुलदीप नैयर की है कि कुलदीप नैयर तो उर्दू ही ज़बान के सहाफ़ी थे, लेकिन उनको उससे बेहतर वेज अंग्रेजी में मिला, वो अंग्रेजी में चले गए। पूरी जिंदगी वो उर्दू ही में गुफ्तगू करते थे और पसंद करते थे। उर्दू का साबिक सहाफ़ी कहलाना उन्हें अच्छा लगता था, मगर उर्दू सहाफ़त ने अगर वेज उनके साथ वो दिया होता जो अंग्रेजी ने दिया, तो शायद वो उसी में रहते। तो ये भी एक बड़ा मसला है जो हम अपने सहाफ़ियों को, अपने बेहतरीन नौजवानों को बचा कर नहीं रख पा रहे हैं कि जो उर्दू सहाफ़त के कारवां को आगे तक ले जाए। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस पर अगर अखबार के मालिकान, अखबार के जो ख़ास तौर से जो अ, दूसरे ज़राए जो अखबार के हैं, उन सबको इस पर गौर करना होगा, तब जाकर ये मुमकिन होगा कि उर्दू सहाफ़त फिर से उस पटरी पर चली आए, और उसका मेयार और उसका जो काम है पिछले ज़माने में जैसे था, वैसा ही काम फिर से उर्दू सहाफ़त करने लगे। हम समझते हैं कि उर्दू सहाफ़त की तारीख़ एक बहुत तवील मौज़ू था, और ये मुमकिन नहीं 1 घंटा नहीं 20 घंटे में भी। अभी हमने एक किताब शाये की, तो जब उसको उसकी फ़हरिस्त बनाने लगे तो ऐसा पहले तय किया कि 250-300 सफ़हात में इस तारीख़ पर किताब होगी। लेकिन करते-करते जब 70 मज़ामीन हमारे हो गए, और 70 मज़ामीन में भी 750 सफ़े में ऐसा लगा कि एक नज़र देखने में ऐसा लगता है कि उसमें सैकड़ों ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पे और होना चाहिए। तो जब ये इतनी 200 बरस की तारीख, हज़ारों अखबारात, अभी मैं चाहता था लेकिन अब वक़्त नहीं है कि जो रसायल हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, इनका भी उर्दू से जो रिश्ता है, और इस तारीख में उनका क्या-क्या रोल है, ये भी मैं गुफ्तगू करूँ, लेकिन उसके लिए भी इज़ाफ़ी वक़्त चाहिए। हम समझते हैं कि ऑनलाइन प्रोग्राम में मैंने 1 घंटा वक़्त ले लिया, अब इससे ज़्यादा इस मौज़ू पर गुफ्तगू शायद मुनासिब ना हो। जो समझ में आया, ख़ास मोड़ जो मुझे नज़र आए, हमने कोशिश की थी कि 10 ऐसे पहलू निकाले जाएँ जो इस 200 बरस में, कि 10 ऐसे मोड़ हों जिन्हें बता दिया जाए कि जिनसे ये सहाफ़त खड़ी हुई है, सहाफ़त, उर्दू सहाफ़त की इमारत खड़ी हुई है। अभी 200 बरस हुए हैं, वो नस्ल और खुशनसीब होगी जो 300, 400 और 500 बरस इस ज़बान की सहाफ़त को तरक्की पाते हुए देखेगी। यार ज़िंदा, सोहबत बाक़ी। करीम सिटी कॉलेज के अहालियान का, ख़ास तौर से यहिया इब्राहिम साहब का, अफ़सर काज़मी साहब का और दीगर अहबाब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका दिया, और मैंने अपने टूटे-फूटे अल्फ़ाज़ में आप तक उर्दू सहाफ़त के पैगाम को और उसकी तारीख़ को पहुँचाने की कोशिश की। शुक्रिया। और भी तमाम चीज़ों का अहाता हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आपने मुख्तसरन ही सही, जिस तरीके से आपने जामे जहानुमा और फोर्ट विलियम कॉलेज से शुरुआत करके और फिर कलकत्ते का गालिब का सफ़र और बदले हुए गालिब की तरफ इशारा करते हुए और फिर वहाँ से दहली उर्दू अखबार और मौलवी मोहम्मद बाकर साहब की कुर्बानी और फिर मुंशी नवल किशोर का उर्दू सहाफ़त और उर्दू नशर में और उर्दू पब्लिकेशंस में उनका जो बहुत ही मुल्की रोल रहा है बहुत बड़ा, और फिर उसके बाद सर सैयद और उनकी तहरीक और उनसे जुड़े हुए तमाम रफ़क़ा जिन्होंने उर्दू सहाफ़त में बहुत बड़ा रोल अंजाम दिया, और फिर उसके बाद जब हम 20वीं सदी में आपके साथ सफ़र करते हुए दाखिल हुए
تو حسب موہانی اور مولانا آزاد اور محمد علی جوہر اور ظفر علی خان صاحب سے لے کر کے آپ نے جس انداز میں قومی آواز اور نہرو اور حیات اللہ انصاری صاحب کے جو کارنامے تھے صحافت کے نقطۂ نظر سے اس پہ روشنی ڈالی، اور نہ صرف یہ کہ بات یہ تھی کہ آپ کو گفتگو کرنی تھی لیگیسیز آف اردو جرنلزم، آپ کو گفتگو کرنی تھی دا ٹرننگ پوائنٹس آف اردو جرنلزم، لیکن جس مؤثر طریقے سے اور جتنے درد کے ساتھ آپ نے موجودہ اردو صحافت کا جو حال ہے وہ رکھا ہم سب لوگوں کے سامنے، تو یقیناً ہمارے تمام اسٹوڈنٹس اور آج کی محفل میں جو تمام شرکاء ہیں ان کو یقیناً اس سے بہت ہی فائدہ ہوا ہوگا۔ بات پیچنا رہی ہے، گفتگو پیچنا رہی ہے، اور آپ نے جس طریقے سے اندازہ اشارہ دیا ہے کہ ہم لوگ چاہتے تو جو اردو ریڈیو میں اردو صحافت کا جو رول ہے اور رسالوں میں اردو صحافت کا جو رول ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے، اور انشاءاللہ کبھی اور بھی ہم لوگ اس پہ گفتگو کرنے کی جسارت کریں گے۔ اس وقت اس محفل میں انیس صاحب، اسد بھائی کے علاوہ اردو کے اور بھی دیگر اساتذہ، بدر بھائی بھی موجود ہیں۔ بدقسمتی سے افسر کاظمی صاحب کو بخار آ گیا ہے اور وہ بیمار ہیں تو وہ شامل نہ ہو سکے۔ میں اور صفدر سر لگاتار 1 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ 10 منٹ تک لگاتار بولتے رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ وقت نہ لیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا کوشچن آنسر سیشن یا تاثرات کا ایک چھوٹا سا سیشن، اس کے لیے میں اس کو اوپن کر رہا ہوں اس محفل کو، اور اس محفل میں جو بھی لوگ موجود ہیں، جو طلبہ موجود ہیں اردو کے، اسکالرز موجود ہیں اردو صحافت پہ جو کام کر رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ 2-3 چھوٹے چھوٹے سوالات ہم لوگ لے لیں، اگر کسی کو کچھ سوال رکھنا ہے یا کوئی تاثر رکھنا ہے۔ جی الطاف صاحب پلیز۔ جی مکرم، میری آواز آ رہی ہے؟ آپ بولیے الطاف بھائی، آواز آ رہی ہے۔ جی جی، بصد احترام و خلوص تمام احباب کو، بالخصوص یہاں اساتذہ اکرام جو موجود ہیں، میری طرف سے آپ کو آداب و سلام۔ جس طرح سے ہمارے معتبر شخصیات اور ہمارے مہمانان ذی وقار نے گفتگو کی ہے آج کے موضوع کے حوالے سے، یہ مسئلہ بہت اہمیت کا حامل اس ضمن سے بھی ہے کیونکہ اردو کا آدھا لٹریچر جو ہے وہ کم و بیش اردو صحافت سے منسلک ہے، اور جس طور سے اس موضوع کو موضوع بحث نہیں بنا کر ہم اس کو درکنار کر رہے ہیں، اس سے درگزر ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اردو صحافت کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے، اور آپ لوگوں نے اس قسم کی بحث و تمہیز کا انعقاد کر کے اردو صحافت کے ساتھ اور اردو زبان و ادب کے ساتھ ایک والہانہ انصاف کیا ہے۔ اب میری مہمانوں جو یہاں پر موجود ہیں، میں نے تو صفدر امام قادری صاحب کو ہی سنا ہے، میری بدقسمتی ہے کہ میں بہت دیر سے تاخیر سے شامل ہوا۔ میری گزارش یہ ہے کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی جو ہیں، جس طرح کہ ہر آدمی اپنے آپ کو صحافی جو ہے وہ منوانے کو تیار ہے، ہر آدمی اگر ہاتھ میں مائک پکڑ لے یا ریڈیو سیٹ قسم کا مائکرو فون پکڑ لے تو وہ اپنے آپ کو صحافی کہنے لگتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ریڈیو کا کیا کردار ہے، ٹیلی ویژن کا کیا کردار ہے، اور ایک صاف، شفاف اور باوقار صحافت کو قائم کرنے کے لیے، تاکہ صحافت کا درجہ بھی قائم رہے اور زبان و ادب کا لحاظ و پاس بھی رکھا جا سکے، اس کے لیے صحافیوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور جو لوگ صحافت کے میدان سے منسلک کچھ انفرادی اجتماعی موضوعات پر تحقیقی کام کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کا کام کر رہے ہیں، اور ان کو کس طور پر اس کی چھانٹ بانٹ کرنی چاہیے تاکہ بہتر تحقیقی مواد سامنے آ سکے، جس سے براہ راست اور اردو صحافت جو ہے وہ ترقی پذیر ہو اور بہتر اور جو ہے مثبت اس کے نتائج برآمد ہوں۔ اس ضمن میں الگ الگ مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرعی خیالات سے نوازیں، تاکہ ہم جو ریسرچ اسکالرز ہیں بالخصوص ان موضوعات پر کام کر رہے ہیں، تاکہ ہماری رہنمائی ممکن ہو سکے۔ بہت شکریہ وقت عطا کرنے کے لیے۔ میں الطاف احمد، ریسرچ اسکالر، شعبہ اردو، یونیورسٹی آف کشمیر، سری نگر۔ بہت شکریہ الطاف بھائی، صرف آپ کی جانکاری کے لیے آپ کا آج ہوئی ہے
سر روشن پروین آپ اپنا مائک سر کا ہم لوگ جواب لے لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں سر پلیز. اس سلسلے سے گفتگو ابھی کر لیں ہم. ہاں سر تھوڑا سا جواب تو ضرور دے دیں آپ اگر مناسب سمجھیں تو. الطاف صاحب نے اصل میں کئی باتیں کہیں ایک ساتھ, اور کچھ باتیں تو غیر متعلق بھی ہیں. اردو صحافت کی تاریخ اور اس کی وراثت پہ گفتگو کرنی تھی. لمیٹیشن ہے کہ دنیا کی ساری باتیں اس میں نہیں کی جا سکتی ہیں. انہوں نے ٹھیک کہا کہ اردو صحافت کا اور اردو ادب کا بڑا گہرا رشتہ ہے. ہم لوگوں نے جب گفتگو کی تو ظاہر ہے کہ ابوالکلام آزاد کو کبھی الگ نہیں کیا, محمد علی جوہر کو الگ نہیں کیا, ظفر علی خان کو اور حسرت موہانی کو. یہ سب اردو کے مشہور ادیب ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں. پھر پورے سر سید تحریک اور سر سید کے رفقا کا تذکرہ ہوا تو وہ سب کے سب ادیب ہیں. اور اس زمانے میں پورا جو نان فکشن پروز ہے, غیر افسانوی ادب, اس کا ارتقاء بھی اسی صحافت کے سہارے اور خاص طور سے انسٹیٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاق کے سہارے ہوا. تو یہ ہماری ادبی تاریخ کا بالکل روشن باب ہے, اور یہ کہیں سے بھی اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو اس کا انکار کرے. آج کل ریڈیو, ٹی وی یا اس طرح کے جو ذاتی وسائل ہیں, ملٹی میڈیا کا دور ہے, تو ذاتی وسائل ہزاروں ہیں. ہر آدمی یوٹیوب چینل بنا سکتا ہے اور اپنی باتیں دنیا تک پہنچا سکتا ہے. سوشل سائٹس کا دور ہے, تو اس سے گھبراہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. دنیا کو جس طرح سے, جیسے سر سید کے دور میں کہ مذہبی تعلیم لی جائے, کہ نیا ایجوکیشن سسٹم جو آ رہا ہے انگریزی تعلیم, اس کو لیا جائے, اس پر جو اس زمانے میں ہچک تھی, تو سر سید بہت صاف صاف سمجھتے تھے کہ دنیا کو کس طرف جانا ہے, اور انہوں نے مذہبی تعلیم کے راستے کو نہیں اپنایا, انگریزی تعلیم کے راستے کو اپنایا. اسی طرح سے ہم جس دوراہے پہ کھڑے ہیں, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ جو خاص طور سے اطلاعات کا افور اور تکنیک کا جو زور ہے, اس میں ہم تکنیک سے الگ ہو کر نہیں جی سکتے ہیں. ان تکنیکوں کا استعمال ہر شخص کو کرنا ہے, اور ان سے اب جب بھیڑ ہوتی ہے تو بھیڑ میں ایک معیار کا سوال ہمیشہ ہوتا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو برسات ہوتی ہے تو کچھ تو برساتی میڈک ہوتے ہیں, کچھ میڈک تو سال بھر ہوتے ہیں, لیکن کچھ برساتی میڈک ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی نظر میں رکھنا ہے کہ کچھ دنوں پہ ایسے لوگ ختم ہو جاتے ہیں یا وہ تھک جاتے ہیں, وہ لمبی ریس کا گھوڑا نہیں ہوتے ہیں. تو اگر ریڈیو کا کوئی چینل بنا رہا ہے, کوئی ٹیلی ویژن کا کوئی پروگرام کر رہا ہے اردو کا ادیب یا اردو زبان میں کر رہا ہے, تو اگر وہ تھک جاتا ہے, ہار جاتا ہے, تو وہ ہمارے لیے کوئی نشانہ نہیں ہے, مگر جو آدمی سنجیدگی سے کام کر رہا ہے اور کل ہو کے وہ اس میدان میں اس میڈیا کا ایک بڑا رکن ثابت ہوتا ہے, کوئی انقلاب آفریں کارنامہ انجام دے دیتا ہے, تو وہ ہمارے لیے قابل توجہ ہے. بہت شکریہ سر. میرے خیال سے روشن پروین صاحبہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں, انہوں نے مائک آن کیا تھا. روشن پروین. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر غلطی سے آن سے نہیں تھا مائک. جی بولیے. اگر کنہیں اور صاحب کو کوئی سوال پوچھنا ہے. چلیے کوئی سوال نہیں آ رہا ہے سر. سر ہمارے دوسرے مہمانان کون ہیں جن سے بات کی جا سکے؟ الطاف بھائی, میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ آج کا لیکچر صرف اور صرف صفدر امام قادری صاحب کا تھا. کل شافع قدوائی صاحب کا لیکچر ہے, اور پرسوں اسد فیصل فاروقی صاحب کا لیکچر ہے. پروگرام کے بہتر. ہمارے بیچ اسد فیصل فاروقی صاحب, پروفیسر احمد بدر صاحب اور جناب پروفیسر انس الرحمان صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ سر اگر آپ لوگوں کی طرف سے چند کلمات تبرکن بھی آ جائیں تو سر پلیز. نہیں, تبرکن تو کی گنجائش نہیں ہے.
लेकिन बहुत ही कॉम्पैक्ट था। जितनी चीजें इन्होंने अपने सामने रखी थी उनको टच किया, और जाहिर है कि तफसील का मौका नहीं है, और कितनी तफसील में जाए आदमी। एक एक पॉइंट पर 2-2 घंटे का वक्त तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है, और ये देते रहे हैं। हम लोग भी जो पढ़ाने वाले हैं उनको पता है कि जो सहाफत पढ़ाता भी हो वो तो एक एक चीज को बहुत दूर तक ले जा सकता है, और जाहिर है कि इसकी गुंजाइश और इसका मौका नहीं था। एक अच्छा सा एक आउटलाइन जो नहीं भी जानता है वो समझ सकता है कि हाँ शुरुआत कब से हुई और आज जहाँ खड़े हैं हम वहाँ क्या सूरत हाल है। एक अच्छी जानकारी जितने भी सुनने वाले हैं, जितने खास करके आपने शुरू से ही तालिब इल्मों पर जोर दिया है और तालिब इल्मों का ख्याल रखा है, तो उस एतबार से बहुत बहुत मौसर, बहुत कामयाब। मुबारकबाद सफदर इमाम कादरी को। शुक्रिया सर। अविनाश, आपने शायद माइक ऑन किया था, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? अविनाश कुमार? नहीं। और असद भाई, अगर आप आवाज सुन रहे हैं और कुछ कहना चाहें। चलिए, हम लोग सर से गुजारिश करें, अनीसुर रहमान साहब से, कि सर आपकी तरफ से कुछ जुमले अगर। शुक्रिया याहिया साहब, क्या अर्ज करूं इसके बाद। इतनी उम्दा गुफ्तगू की सफदर साहब ने आज, इतना उम्दा अहाता था कि मैं तो अशश कर रहा था और सुन रहा था बहुत गौर से। देखिए, बहुत खूबी है इस तकरीर की, इस गुफ्तगू की, कि ये सिर्फ तारीखी पस मंज़र नहीं पेश किया इन्होंने, बल्कि मुझे उस बात की खुशी है कि एक तनकीदी मंजरनामा भी साथ साथ चल रहा था। यानी नस्र के इर्तिक़ा के भी जिक्र हुआ, असनाफ के इर्तिक़ा का भी जिक्र हुआ, और तारीख़ी एतबार से भी जिक्र हुआ इन तमाम बातों का। तो किसी भी लेक्चर की जो खूबी है वो ये है कि एक ऐसा नैरेटिव ना हो कि उसके अंदर सिर्फ तारीख़ साजी की जाए और तारीख़ बता दी जाए कि साहब ये अबवाब हैं और ये मनाजिल हैं, बल्कि उसके अंदर जो इनका क्रिटिकल इनपुट था वो हमारे लिए बहुत अहम था। ख़ासतौर पे जब इन्होंने जिक्र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि फोर्ट विलियम 1800 में कायम होता है और 30 साल के बाद ख़त्म हो जाता है, और क्या कारखाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया सदर साहब ने। तो जो कारखाना था ज़बानों का, और उसमें फिर राजा राम मोहन राय का भी जिक्र करके नहीं हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जाहिर है कि 1 घंटे में बहुत कुछ, अवध पंच वगैरह वगैरह। तो जो बात मुझे ख़ास तौर पे अच्छी लगी वो ये है कि इसमें ज़बान के इर्तिक़ा और असनाफ के इर्तिक़ा के बारे में भी जो सफदर साहब ने जो बातें की हैं वो मेरे लिए ख़ास तौर पे अहमियत का बाइस है। दूसरी बात जो बहुत अहम है याहिया साहब, मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट्स में जो ज़बानों के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, आम तौर पे हम एक बहुत आसान रवैया ये रखते हैं कि किसी शायर या किसी अदीब को चुना और उस पर एक थीसिस लिखा। ये जो मौजू है जिस पे आपने गुफ्तगू का इनेकाद किया है 3 दिनों के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम मौजू है, इसलिए कि ये रिसर्च के जो नए दरवाजे खुलते हैं इससे, और एक इंटरडिसिप्लिनैरिटी जो आती है, जो इस ज़माने का तकाजा भी है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएं और मुख्तलिफ समतों में अपने सफ़र को जारी रखें। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि ये एक बहुत नेक फ़ाल है और एक बहुत अच्छा काम आपने किया है, ख़ासतौर पे जब आपने इसमें स्टूडेंट्स को शामिल किया। तो अंदाज़ा मेरा ये है, ख्याल मेरा ये है कि आपने नई समतें भी खोली हैं रिसर्च के लिए। और टैटलर स्पेक्टेटर का जिक्र कर रहे थे सफदर साहब, तो टैटलर स्पेक्टेटर को आप अलग नहीं देखते अंग्रेज़ी के तालिब इल्म, बल्कि वो लैंग्वेज के डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मौजू है जो आपने शुरू किया है। 3 गुफ्तगू से मेरा अंदाज़ा, असद साहब यहाँ बैठे भी हुए हैं, शाफे साहब किसी वजह से नहीं है, अगर तीनों लेक्चर्स को एक साथ अगर आप करके देखिएगा तो स्टूडेंट्स के लिए बड़े दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। और रिसर्च का जहाँ तक सवाल है, बड़े नए नए दरवाजे खुले हैं रिसर्च में, वो स्टीरियोटिपिकल जो रिसर्च होती है। अब एक जो बहुत आखिरी बात जो सफदर साहब ने कही वो बहुत अहम है मेरे लिए, कि फी ज़माना जो जर्नलिज्म का मेयार और जर्नलिज्म की जो तरजीहात और जो मजबूरियाँ और जो परेशानियाँ हैं उसका जो जिक्र किया वो बहुत अच्छा अहाता था। रिक्रूटमेंट, और उसके बाद वेजेस, और उसके बाद नई जो टेक्नोलॉजी है उससे आहमंगी या नहीं आहमंगी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या सूरत है। तो ये सब भी मसाइल हैं हमारे रिसर्च के, और ये सब भी मसाइल हैं जिसके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि हमारी सूरत हाल आज क्या है और कल क्या हो सकती है। बहुत अच्छी गुफ्तगू का इनेकाद किया, यही सब आपने, बहुत शुक्रिया आपका कि ऐसा मौका मुझे दिया कि सुन सकूँ इस गुफ्तगू को। सदर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि एक ऐसे मौजू पे आज आपने गुफ्तगू की और इतनी भरपूर गुफ्तगू की, और 1 घंटे में जितना मवाद आपने हम तक पहुँचा दिया
कई दरवाजे खुलते हैं इस रिसर्च की और फिक्र के। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब इस महफिल के इख्तिताम तक पहुँचते हैं। मैंने जैसा अर्ज़ किया था कि हमारे कन्वीनर अफसर काज़मी साहब को बुखार ने आ घेरा है और वो बदकिस्मती से मौजूद नहीं है, मतलब हमारी बदकिस्मती से वो मौजूद नहीं है। तो उनकी तरफ से हमारे कॉलेज की जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से शुबे उर्दू करीम सिटी कॉलेज की जो तमाम असातिज़ा कराम हैं, जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से, और शुबे अंग्रेज़ी करीम सिटी कॉलेज के तमाम उस्ताद और तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से, इस महफिल में जो तमाम हज़रात जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम स्टूडेंट्स जो इस महफिल में जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे ज़्यादा और दिली शुक्रिया और बहुत ही मुअद्दबाना और ताना शुक्रिया हमारे आज के रिसोर्स पर्सन जनाब सफदर इमाम कादरी साहब का, कि सर आपने वक्त निकाला, और यकीनन पढ़ने में होना और इस वक्त में होना जबकि तमाम तरफ रिजल्ट और एडमिशन्स के सिलसिले चल रहे हों, तो आपने सर वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े और हमारी बात पे आपने हमारी दावत पे आपने लब्बैक कहा। सर हम बेहद ममनून व मशकूर हैं जिस अंदाज से आपने गुफ्तगू फरमाई, और जो जहतें, जैसा कि अनीस सर ने कहा, जो जहतें आपने अपनी गुफ्तगू से खोली हैं, यकीनन वो हम तमाम लोगों के लिए, और चूँकि ये लेक्चर यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह मौजूद रहेगा, तो बाद में तमाम सुनने वालों के लिए भी इंशाल्लाह रिसर्च के अलग अलग मौज़ूआत इससे निकलेंगे और खुल करके आएंगे, और लोग इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे और इस पे कलम उठाने की कोशिश भी करेंगे। सर हम आपके बहुत ममनून व मशकूर हैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से। और सर अनीस सर आपका बेहद शुक्रिया। जावेद साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, असद फैसल फारूकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, और तमाम असातिज़ा कराम का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। क्या वक्त है कल और परसों की? कितनी सर बजे? यही वक्त रहेगा सर, 7 बजे। 7 बजे शाम का। ठीक है जी ठीक है, 9:30 बजे। और यहिया साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी बड़ी शख्सियत से हम लोगों को रूबरू कराया। थैंक यू। आले भाई हैं कहाँ आप? ये रियाज सर बोल रहे थे सर। और हमको लगा से आले भाई क्या आवाज आले भाई ईरान से जुड़ गए क्या? मोटी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से